ਹੈਲੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਮਾਈ YouTube ਚੈਨਲ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਉਹਨਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਜੋ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਸਕੂਲਸ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਿਕਾਜ਼ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਮੈਥੇਮੈਟਿਕਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕੁਝ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ MCQ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰਸ ਵਿੱਚ ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, 3 cubes each of side 5 centimeter are joined end to end, then the surface area of resulting cuboid is। 3 cubes ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। क्यूब की साइड है 5 सेंटीमीटर, दैन जो क्यूबाइड फॉर्म्ड होएगा उसकी लेंथ होएगी 15 सेंटीमीटर, ब्रेथ एंड हाइट सेम रहेगी 5 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। नाउ टू फाइंड आउट सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड, फॉर्मूला 2 LB plus BH plus HL then put value of L, B and H and find out the value of surface area। इस एग्जाम ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਫਾਰਮੂਲਾਸ ਵਗੈਰਾ ਆਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੈਥਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਜੋ ਵੀ ਬੇਸਿਕਸ ਹਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ 350 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਸਕੁਅਰ ਬਾਈ ਪੁਟਿੰਗ ਲੈਂਥ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 15, breadth 5 and height 5। Next question, the hypotenuse of right angle triangle is 6 meters more than twice the shortest side। Hypotenuse of right angle triangle, we have a triangle, this is perpendicular, base and hypotenuse, जो longest side है उसनों hypotenuse कहते हैं। सो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग hypotenuse is equal to 6 more than shortest side, let shortest side is x। now twice means 2 times x plus 6 meters, 6 meters more than twice the shortest side। मान लेने हैं कि shortest side x है, twice the shortest side that is 2x, 6 meters more than that is 6 plus 2x। hypotenuse की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 plus 2x। if the third side is 2 meters less than the hypotenuse and third side is equal to 2 meters less than hypotenuse, that is 4 plus 2x। now we have 3 sides 4 plus 2x and hypotenuse is equal to 6 plus 2x and shortest side is equal to x। now by using Pythagoras theorem, p square plus b square is equal to h square and putting value of p, b and h, find out the value of hypotenuse। h is equal to 6 plus 2x। सब तो पहला जो आप इस इक्वेशन में सारिया दी वैल्यूज़ फिल करांगे, x की वैल्यू आ जाएगी तो उस तो बाद x की वैल्यू फिल करके हाइपोटेन्यूज की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हाँ। नैक्सट, लीप के साल विच 53 ਐਤਵਾਰ आने की की संभावना होगी, ये प्रोबेबिलिटी नाल रिलेटेड है। सो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला आना चाहिए है। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है एक्सपैक्टेड आउटकम्स, P is equal to expected outcomes divided by total outcomes।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੀਪ ਦੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ? 366। ਤੇ 366 ਨੂੰ ਅਗਰ ਜੇ 7 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ (52 ਵੀਕਸ ਪੂਰੇ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ 2 ਡੇਜ਼ ਐਕਸਟਰਾ ਬਚਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆਏਗੀ एक्सपैक्टेड 2 एंड टोटल डेज ऑफ वीक कितने होंगे हैं? 7। सो आंसर आएगा 2/7, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट आर 15 मीटर एंड 8 मीटर देन द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल इज। रेक्टेंगुलर प्लॉट गिवन है, इस दियां साइड्स 15 मीटर एंड 8 मीटर है, डायगनल की वैल्यू फाइंड करनी है। सो ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ लॉन्गेस्ट साइड। 15 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर अंडर रूट दैट इज 225 प्लस 64 विच इज फर्दर equal to 289 which is equal to 17 meter. The circumference of a circle must be, circumference सारियां टर्म्स बारे तुहानूं नॉलेज होनी चाहिए है। circumference means ਚੱਕਰ ਦਾ ਘੇਰਾ। ਚੱਕਰ ਦਾ ਘੇਰਾ ਹਮੇਸ਼ਾ पॉजिटिव हुंदा है, सो इसका आंसर आएगा पॉजिटिव रियल नंबर। नैक्सट सैक्शन फॉर्मूले नाल रिलेटेड क्वेश्चन है। 2 बिंदु गिवन हैं ए अते बी, अते -46 पॉइंट है, वो देखना है कि किस अनुपात विच वंडेगा। ये क्वेश्चन सैक्शन फॉर्मूला नाल रिलेटेड है। ए बी गिवन है, मिड वाला पॉइंट भी गिवन है -4 एंड 6। ये रेशियो फाइंड आउट करनी है M एंड N। ये तुसी डायरैक्ट इसका फॉर्मूला यूज करके वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। x is equal to m x2 plus n x1 divided by m plus n, and similarly y is equal to m y2 n y1 divided by m plus n। ये फॉर्मूला यूज करके तुसी m ਅਤੇ n ਦੀ वैल्यू फाइंड कर सकते हो। m रेशियो n, जो m ਦੀ वैल्यू आएगी रेशियो n, वो ਤੁਹਾਡਾ आंसर हो जाएगा। नैक्सट क्वेश्चन, द मीडियन ऑफ द डाटा। मीडियन फाइंड आउट करने वास्ते सब तो पहला इसनूं असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर विच अरेंज कर लवांगे। सब तो पहला सब तो छोटी टर्म लिख लेने हैं 22, दैन 34, 39, उस तो बाद 45, 54, then again 54, then 68, 78 and 84। (54) 2 बार आ रहा है, उस तो बाद 68, 78, उस तो बाद इसका मीडियन फाइंड आउट करांगे। (56) भी स्किप कर गए सी असीं,
वो भी लिख लिया है। हुण मिड पॉइंट देखना है, इसका मीडियन फाइंड करने वास्ते। सो ये टोटल 10 टर्म्स हैं। मिड विच 2 टर्म्स आ रही हैं 54 एंड 54। सो जो मिडल टर्म्स हैं उन्हों का प्लस करके हाफ कर देवांगे। ये मीडियन फाइंड करने का फॉर्मूला है 54 + 54 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 54। सो इसका आंसर आ जाएगा 54। जेकर नंबर ऑफ टर्म्स ऑड होंदियां, फॉर एग्जाम्पल 9 नंबर ऑफ टर्म्स होंदियां तो फिर सेंटर वाला टर्म आंसर आ जाना सी। सो क्वेश्चन चेंज भी हो सकता है। सो इसनूं ध्यान विच रखा जाए कि मीडियन फाइंड करने का फॉर्मूला की है। इफ डी इज डायमीटर ऑफ अ सर्कल दैन इट्स एरिया इज, एरिया ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वेयर। रेडियस नूं आपां लिख सकते हाँ डायमीटर बाय 2, बिकॉज जो रेडियस है वो डायमीटर का हाफ हुंदा है, इसलिए आप आर नूं लिख सकते हाँ डी बाय 2। सो इसका आंसर आ जाएगा पाई डी स्क्वेयर बाय 4। सो इसका आंसर आएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट, विच टर्म ऑफ द AP 92, 88, 84, 80 इज 0। हुण nth टर्म ऑफ AP का फॉर्मूला होना चाहिए है जो कि TN A + n-1D नाउ nth टर्म 0 है, 0 फिल कर लवांगे। उस तो बाद A फस्ट टर्म 92 है प्लस विच टर्म मीनस n की वैल्यू आप फाइंड आउट करनी है, तो D की वैल्यू कितनी है 88 - 92 दैट इज़ -4। D फाइंड आउट करने वास्ते सैकेंड टर्म विचों फस्ट टर्म माइनस करांगे, -4 आंसर आ जाएगा। सो n-1 एंड D की वैल्यू है -4। इस इक्वेशन में सॉल्व करके n की वैल्यू फाइंड आउट कर लवांगे जो कि तुहाडा आंसर होवेगा। नेक्स्ट, इफ P-1 P + 3 3P-1 आर इन AP दैन P इज इक्वल टू 3 टर्म्स AP विच हन अते P की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो बिकॉज ये टर्म्स AP विच हन, सो सैकेंड टर्म P + 3 माइनस फस्ट टर्म इज इक्वल टू जो कंजैक्टिव टर्म्स हैं उन्होंने जो डिफरेंस है वो इक्वल होएगा P + 3। सैकेंड टर्म माइनस फस्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस सैकेंड टर्म, ये दोवें इक्वल होंगे क्योंकि जो इस विच गैप है जो डिफरेंस है वो सेम होएगा। इसलिए आप सैकेंड टर्म विचों फस्ट टर्म माइनस करांगे अते थर्ड टर्म विचों सैकेंड टर्म माइनस करांगे। इस इक्वेशन को सॉल्व करके P की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं जो कि तुहाडा आंसर होएगा। नेक्स्ट, द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 21 सेंटीमीटर लॉन्ग, द डिस्टेंस मूव्ड बाय द टिप ऑफ अ मिनट हैंड इन 1 आवर इज। मान लो साडे कोल क्लॉक है, जो मिनट हैंड है मिनटा वाली सूई है उसकी जो लेंथ है वो 21 सेंटीमीटर है। एक घंटे विच देखना है कि कितना डिस्टेंस कवर करेगी, यानी कि सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला यूज़ होएगा 2πr। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 2πr एंड एरिया इज इक्वल टू πr²। इस विच सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला यूज़ होएगा 2π एंड r की वैल्यू कितनी है
21 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो इसका आंसर आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 21 42 पाई सेंटीमीटर। बिकॉज सिंगल आ रहा है इस करके इसका आंसर आएगा 42 पाई सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ tan a इज इक्वल टू x बाय वाई देन cos a इज इक्वल टू, ये ट्रिग्नोमेट्रिक का क्वेश्चन है। tan इज इक्वल टू p बाय b, दैट इज p की वैल्यू है x एंड b की वैल्यू है y। नाउ cos इज इक्वल टू b ओवर h, cos बेस ओवर हाइपोटेन्यूस के इक्वल होंदा है, इसलिए b की वैल्यू है y डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस by using Pythagoras theorem। hypotenuse is equal to p square, p means x square and b means y square। so इस आंसर आ जाएगा b y एंड h की वैल्यू है x स्क्र प्लस वाई स्क्र अंडर रूट। सो इस आंसर आ जाएगा b ऑप्शन। नेक्स्ट अगेन ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ अंडर रूट 3 कोसिकेंट 60 माइनस सिकेंट 60 इज। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनाना आना चाहिए है अते वैल्यूज़ भी याद होनिया चाहिए हैं। अंडर रूट 3 कोसिकेंट 60 इज इक्वल टू 2 बाय अंडर रूट 3 माइनस सिकेंट 60 इज इक्वल टू 2। अंडर रूट 3 कैंसल, 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। सो बी इज राइट आंसर। Next, if two positive integers m and n are expressible in the form of m की वैल्यू है p q क्यूब and n is equal to p क्यूब q square, p q are prime numbers, then HCF of mn, HCF फाइंड आउट करना है। सो इसका आंसर आएगा, सब तो पहला देख लेना है कि p किन्ने कॉमन हैं दोवां विच, p 1 है अते क्यू किन्ने कॉमन हैं दोवां विच 2 क्यू स्क्र। आंसर आ जाएगा पी क्यू स्क्र। दोनों विच कॉमन देखना है कि हाईएस्ट कितना कॉमन है। सो पी दोनों विच है, उस तो बाद क्यू स्क्र दोनों विच है, सो कॉमन पी क्यू स्क्र आएगा। सो HCF की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बी ऑप्शन पी क्यू स्क्र। नेक्स्ट, इफ x माइनस 2 इज द फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल x स्क्र माइनस 4x प्लस के, then the value of k is, because x minus 2 फैक्टर है, so x की वैल्यू इस पॉलीनोमियल नू सैटिस्फाई करेगी। दैट इज इस विच जदों आपां x नू 2 फिल करांगे तो ये 0 के बराबर हो जाएगा। x की वैल्यू 2 फिल करांगे माइनस 4 2 प्लस k इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन में सॉल्व करके k की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। 2 स्क्र मीनस 4 माइनस 8 प्लस k इज इक्वल टू 0, दैट इज k इज इक्वल टू 4। सो इसका आंसर आएगा सी ऑप्शन 4। Next, the value of k for which the pair of linear equations 4x plus 6y minus 1 is equal to 0 and 2x plus ky minus 7 is equal to 0 represent parallel lines। बिकॉज ये दोनों पैरलल लाइन्स हैं, इट मीनस इन्हों का जो स्लोप है वो इक्वल होएगा। इसनों आप इस तरह लिख सकते हैं 4/2 इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ x एंड कोफिशिएंट ऑफ y। 4/2 इज इक्वल टू 6/k। इसनों सिंपलीफाई करांगे, सो इसका आंसर आ जाएगा k इज इक्वल टू 3।
A circle has number of tangents. सर्कल उपर टेंजेंट्स इनफाइनाइट होंदियां हन, सो इसका आंसर आएगा इनफाइनाइट, बिकॉज एक सर्कल दे आप बहुत सारिया जो टेंजेंट्स है ड्रॉ कर सकते हैं, सो इसका आंसर आएगा इनफाइनाइट। नेक्स्ट, द अरिथमेटिक मीन एंड मोड ऑफ अ डाटा आर 24 एंड 12 रिस्पैक्टिवली, दैन इट्स मीडियन इज। मीन एंड मोड गिवन है तो मीडियन की वैल्यू तुसी फाइंड आउट करनी है। जो इन्हां तिन्नां दी रिलेशन का फॉर्मूला है वो लगा के तुसी ईजीली ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। नैक्सट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट। ये क्वेश्चन संभावना का है, प्रोबेबिलिटी का है। इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी होंदी है 0। इसकी जगह पर श्योर इवेंट भी आ सकता है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट का आंसर आएगा 1 एंड इम्पॉसिबल इवेंट का आएगा 0। नैक्सट, इफ द पॉइंट PXY इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम A एंड B, दैन XY पॉइंट इन्होंने दोनों पॉइंट्स तो इक्विडिस्टेंट है, मतलब कि सेम डिस्टेंस से है। ये डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके क्वेश्चन फाइंड आउट कर सकते हैं। द वैल्यू ऑफ √6 प्लस √6 प्लस √6 सो ऑन, इसनों y मन लवांगे, √6 प्लस y दोनों साइड्स से स्केयरिंग करांगे, y² इज इक्वल टू 6 प्लस y। सो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, y² माइनस y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। इस क्वाड्रेटिक नूं सॉल्व करके जो y की वैल्यू आएगी वो तुहाडा आंसर होएगा। नैक्सट, द वॉल्यूम ऑफ 2 स्फीयर्स आर इन द रेशियो 64:27। द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरियाज इज। 2 स्फीयर्स का वॉल्यूम गिवन है। 2 स्फीयर्स मीनस वॉल्यूम का फॉर्मूला की होंदा है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू 64/27। नाउ R1/R2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4/3 कैंसल्ड, पाई कैंसल्ड, R1 क्यूब डिवाइडेड बाय R2 क्यूब, दैट इज द जो R1/R2 की रेशियो है वो आ जाएगी 4/3। सो द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया फाइंड आउट करनी है, तो सरफेस एरिया की वैल्यू होंदी है, फॉर्मूला अगेन मैं तुहानूं कह रही हाँ कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं इस टैसट लई, सो चंगी तरह याद कर लो। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला है 4πr²। सो इसकी रेशियो की आ जाएगी 4π कैंसल्ड एंड R1 की रेशियो है, सॉरी R1 की वैल्यू है 4² डिवाइडेड बाय R2 की वैल्यू है 3। सो इसका आंसर आ जाएगा 16:9, दैट इज डी ऑप्शन। नैक्सट क्वेश्चन ट्रिग्नोमैट्री का है, ये तुसी खुद सॉल्व कर सकते हो, बहुत ईजी क्वेश्चन है। नैक्सट, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला है, ये भी बहुत ईजी है अगर फॉर्मूले याद किए होन। इसका आंसर आएगा πr²h, डी ऑप्शन। जो सी ऑप्शन है वो वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला है, अगर वॉल्यूम ऑफ कोन आता है तो सी ऑप्शन आएगी, अगर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आता है तो डी ऑप्शन आएगी। नैक्सट, वैल्यू ऑफ sin² x प्लस cos² x इज इक्वल टू sin² x प्लस cos² x 1 के बराबर होंदा है, सो इसका आंसर आएगा 1। द लेंथ्स ऑफ 2 टेंजेंट्स AP एंड AQ ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट A टू अ सर्कल इज। एक सर्कल है तो एक्सटर्नल पॉइंट है, उस तो 2 डिफरेंट पॉइंट्स से टेंजेंट्स ड्रॉ कीतियां गई हैं। सो इन्हां दोवां दा टेंजेंट्स का की रिलेशन होएगा। सो बिकॉज किसी भी पॉइंट तो एक्सटर्नल पॉइंट तो जो असी टेंजेंट्स ड्रॉ करते हाँ तो वो दोनों इक्वल होंदियां हैं, सो इसका आंसर आएगा ए ऑप्शन, AP इज इक्वल टू AQ। दैन प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, अ बॉक्स कंटेन 3 ग्रीन बॉल्स, 5 ब्लू बॉल्स एंड 2 black balls, then probability of getting a blue ball is।
अगेन प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला यूज़ होएगा, ऊपर फेवरेबल आउटकम्स, नीचे टोटल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स। नाउ ब्लू बॉल ਲਈ फेवरेबल आउटकम्स ਕਿੰਨੀਆਂ ਹਨ? ब्लू 5 एंड टोटल बॉल्स ਕਿੰਨੀਆਂ ਹਨ? 10। सो आंसर आएगा 5/10। इस विच ऑप्शन डी आएगी। नैक्सट, दो घाती समीकरण 6x² - x - 2 = 0 की एक सिफर होगी। इस इक्वेशन का रूट देखना है कि किहड़ा होगा। सो वैल्यू फिल करके देख लवांगे, जो इस इक्वेशन को सैटिस्फाई कर जाएगी वो इसका आंसर हो जाएगा। नैक्सट, द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर इन द रेशियो 9/16। then ratio of their corresponding sides is, एरियाज की वैल्यू है 9 and 16। सो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो की आएगा? मान लो एक ट्रायंगल की साइड है AB, दूसरे की मान लो कि BC है, ਜਾਂ DE मान लो। इसका आंसर आएगा 3/4, ए ऑप्शन। A dice is thrown once, then the probability of even number। अगेन प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ईवन नंबर। जो डाइस है उस उपर किहड़े किहड़े नंबर आने की संभावना है? 1 2 3 4 5 एंड 6। नाउ ईवन नंबर की देखनी है प्रोबेबिलिटी। ईवन नंबर कौन कौन से हैं? 2 4 एंड 6। सो इसका आंसर आएगा 3 ऑप्शनस हैं ईवन नंबर ਲਈ। सो फेवरेबल आउटकम्स 3 एंड टोटल कितनियां हैं? 6। सो आंसर आएगा 1/2, डी ऑप्शन। ਈਵਨ ਨੰਬਰਸ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ 2 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਜਾਣ ਅਤੇ ਔਡ ਨੰਬਰ ਜੋ 2 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਨਾ ਹੋਣ। ਨੈਕਸਟ, ਇਫ ਦ ਕੁਆਡਰੇਟਿਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ हैज़ इक्वल रूट्स दैन द डिस्क्रिमिनेंट इज, इसका आंसर आएगा D = 0। अगर कुआड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स बराबर होणगे तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू होंदी है 0। दैन एरिया ऑफ सैक्टर, इफ द एंगल ऑफ सैक्टर इज 90 डिग्री एंड रेडियस इज 14 सेंटीमीटर। इस विच एरिया ऑफ सैक्टर का फॉर्मूला यूज होएगा। एरिया ऑफ सैक्टर इज इक्वल टू थीटा डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय πr², दैट इज एरिया ऑफ सर्कल, πr²। सो थीटा की वैल्यू है 90 डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय पाई की वैल्यू है π/7 एंड रेडियस है 14, 14² दैट इज़ 14 मल्टीप्लाई बाय 14। इस इक्वेशन को सॉल्व करके जो भी आंसर आएगा वो तुहाडा आंसर होएगा। इसनों तुसी सॉल्व कर सकते हो। इफ द सीक्वेंस 2 4 6 8 अप टू सो ऑन आर इन AP, दैन द 8th टर्म इज, ये क्वेश्चन AP का है, अरिथमैटिक प्रोग्रेशन का है, अंक गणितिक लड़ी का है। इसकी 8th टर्म फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट टर्म की वैल्यू कितनी है? 2 एंड D की वैल्यू है, कॉमन डिफरेंस 2 है। सो nth टर्म का फॉर्मूला है A + n - 1D। n - 1 मीनस 8 - 1 दैट इज 7 एंड D की वैल्यू है 2। A + n - 1D, A की वैल्यू है 2 एंड n की वैल्यू है 8, 8 - 1 7 बन जाएगा, तो D की वैल्यू है 2। सो इसका आंसर आएगा 2 + 14 दैट इज़ 16।
सो आई होप कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣਗੇ।